So the important constituents that have been covered up in PLI scheme includes food processing that we did with agriculture, and then textile, with which we started yesterday. And pharmaceutical is what we are handling right now. Pharmaceutical with medicines, drugs, and pharmaceutical with API and the KSM. अभी हम उनके बारे में बात करेंगे. So pharmaceutical sector, we as Pharmacy of World, definitely pharmacy as our status is not related to we being leading producer, and that is the reason I have emphasized on it. Statement-based question can be easily framed up. You all must be updated. Prelims have been postponed, but your approach of preparation has to be with the same pace. There is no point for you to anywhere change your strategy. You have got additional time, so any backlog of main preparation, if it is there, you can devote some time at least by month of April, combining it with prelims now. So in place of getting on to the war footing with prelims only, we have got, because it's the postponement of almost 20 days. So if it is like you can utilize those 20 days by taking some backlog of your main preparation, that is what you can do. Otherwise, remain focused on your prelims. Take more previous year question solving, and this will give you the confidence. Don't deviate and don't get overexcited with that you have got that additional time, because paper is going to be held, and it is good for us to chart out our weaker points and work out there, utilizing this additional time that we have got. Coming back to the topic, when I talk about pharmacy, statement-based question can be India is called Pharmacy of World because of which of the following. So we are not the leading producer of pharmaceutical. We are producing world-class medicine at the most cost-competitive manner. That is what it is giving. And today, when I talk about genesis of pharmaceutical segment, 1978 was absolutely public sector domain. But आज की date में you recognize it as a private entity because public sector players have got negligible role. We closed down the class recognizing, and it is still there on the board in front of us. We closed down by referring revolution created and revolution halted. So what were the observations that were made in 10 years of the time span between 2002 to 2012 that led to a complete U-turn of the pharmaceutical policy that we have learned, and we want to continue further beyond that. So if I have to take my extension beyond it and apply it with the present purview of what we recognize as PLI incentive, so it can be taken up like this. So 2017, you are taking up 2017 pharma policy that has marked up the mobilization of building over 2012. So 2012 mein NPPA capping up the prices, NPPA giving legitimate and ethical market momentum to the low-cost companies, compulsory license being given, because we definitely had our pharmaceutical revolution oriented towards affordability rather than innovation as our domain. So all that done, we are taking up the reference of its mobilization with drugs, medicines, bulk drugs and formulation both. Basically, they are raw material for the production of pharmaceuticals, bulk drugs or formulation both of them. And India has been majorly dependent on China. Chinese imports have been our support system for both API as well as KSM. So 2017 pharmaceutical policy, which excellently orients towards building over what we have created as the revolution halted for the short time span and revival. As I said, talking about it yesterday. So 2017 pharma policy, cent percent FDI, automated route for greenfield brownfield investments have been now regulated. And when I take up the reference of demarcation of PLI, so that is what you can add further with the list. So under PLI, we have made multi-stride development, but we are dependent on imports. And when it comes on to dependency on imports, automatically your self-reliance is not defined. So I want to contain the private participation, certainly not. I want to make it greenfield investment. And that greenfield investment is what is being targeted. And the scheme for promotion of drugs park, it is almost on the same line as PM Mitra.
And this is what we'll be talking about when we talk about the new EXIM policy, export promotion policies. You will be talking about that. So 53 critical API have been approved under PLI. It is basically to make India self-reliant in raw material. This is 2017. 2017 gives me just these 2 pointers. And because I'm done with 2012 and 2002, it readily gives me the justification there. If it is done, you'll give me go ahead. I'll be talking about white goods, making mention of brown goods also, and specialty steel. But उससे पहले एक छोटा सा mention of fertilizer. आपको सब कुछ समझा दिया है, एक बस consolidation देना चाह रहे हैं. Fertilizer is been an important chemical industry of our country. And when it comes on to fertilizer, it is something that you should be aware of in a consolidated manner. We have learned about fertilizer already while taking up agriculture. But you can recall that time also I very clearly said that we'll be enlarging it eventually, है ना? So PLI में we are not having any specification mention for fertilizer, तो एक star mark के साथ add कर देते हैं. आपको हमने सारा अपडेशन फर्टिलाइजर के लिए दे दिया है. जो फर्टिलाइजर पॉलिसी फैक्टर को आपको जज करना है, उसमें एक तो नंबर 1 मैंने लिख लिया, तो जल्दी से गो अहेड दे दो, हम आपको समझा दें और फिर हम आगे बढ़े टू इनकॉर्पोरेट PLI in the steel, स्पेशलिटी स्टील का डिमार्केशन देना है. अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है? हम अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. Throughout the fertilizer production purview, fertilizer production have been mobilized in India with Sindri, आपको बताया था 1951. And when I take up the reference of Indian fertilizer production purview, we have made multi-stride development. और कहीं पर भी कोई exaggeration नहीं है ये बोलते हुए कि India has generated food self-sufficiency or has made multi-stride development in agriculture. It has been largely because of the growth of fertilizer, because fertilizer facilitate multiple cropping, because I don't need to make my soil wait to regenerate its natural fertility. लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर का डेवलपमेंट में यूनियन गवर्नमेंट हैव बीन बियरिंग इमेंस बर्डन ऑफ सब्सिडी. उस सब्सिडी के बर्डन को कम करना, फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को अबेट करते हुए, देयर वाज अ वेरी कॉशियस अटेम्प्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम प्राइस रिटेंशन टू कॉस्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरिया. तो यूरिया का प्रोडक्शन तो कोई भी कंपनी कॉस्ट कंपिटिटिव एज पर कर ही नहीं रही. तो लो कॉस्ट कंपनी से प्रोक्योरमेंट शुरू होने की वजह से कभी नोटिस करा होगा आपने 2005 ऑनवर्ड्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में मैसिव सिकनेस एक्सपीरियंस की गई इंडिया में. सिकनेस इसलिए कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ही आपके फर्टिलाइजर को प्रोक्योर नहीं करेगी बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग इट एट हाई कॉस्ट, तो कौन करेगा? And that was the reason that there was cost reconstructing compulsion that started evolving. So price retention scheme जो हमेशा से fertilizer segment का approach रहा, उसको हमने substitute कर दिया है with urea procurement, which is to the low cost company. जो भी company सबसे कम cost पर fertilizer produce कर रही है, union government will be acquiring urea from them. आप बोलोगे उससे तो यूरिया की खपत पूरी हो नहीं पाएगी, तो इसलिए यूरिया का प्रोग्राम नंबर 2 आ जाता है. कॉस्ट कटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने इनपुट कॉस्ट को कम कीजिए. तो नाफ्ता बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय नेचुरल गैस. तो द न्यू नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन यूरिया सेक्टर व्हिच अट्रैक्ट्स बोथ ब्राउन एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर्स is that I want to substitute naphtha. Naphtha is a byproduct of petro refining center. आपको पूरे 23 पेट्रो रिफाइनिंग सेंटर समझा दिए हमने. Crude oil is imported. We are largely paying it in US dollars. US dollars के रेफरेंस में इंडियन रुपी का वैल्यूएशन आज की डेट में अपने लाइफ टाइम हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पर है. आप एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, प्रोसेसिंग कॉस्ट बियर कर रहे हो, तब प्रोड्यूस होता है नाफ्ता. नाफ्ता इज एन एक्सपेंसिव फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. अगर आपने नाफ्ता को नेचुरल गैस से सब्स्टिट्यूट किया तो आपने रॉ मटेरियल को चीप कर दिया, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप कम होगा. हैंड रेस करो, कैमरास ऑन करके बैठो सब लोग. तो नाफ्ता को नेचुरल गैस से सब्स्टिट्यूट करना कॉस्ट कटिंग के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन हुआ. उसके अलावा आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो? When you talk about new notified investment policy in urea sector, you have mobilized all that which will make urea more efficient, जिसमें कवरेज ज्यादा हो, कंजम्पशन कम हो, तो नैनो यूरिया को लें. और जब आप नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया कर रहे हैं, you are talking about that all ecological dimensions which are there, which we have done. तीसरी चीज आपको लिखवाई है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी.
प्राइवेट प्लेयर्स डोंट वांट टू बी पार्टिसिपेंट ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि अर्निंग पॉसिबिलिटी होगी नहीं। यूनियन गवर्नमेंट कभी आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पर बेचने ही नहीं देगी ना। द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इज टू अट्रैक्ट प्राइवेट पार्टिसिपेंट, and this has actually attracted private participant in fertilizer. How it was made possible? अगर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का एज दोगे प्राइवेट प्लेयर को, तभी वो आएंगे, वो आ गए। लेकिन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर इतना हाई रहेगा कि फार्मर्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यूनियन गवर्नमेंट हैव मोबिलाइज्ड, there are 7 different composite fertilizer जो P और K, that is potash, phosphorus and potash category का है। वहां पर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग पर किलोग्राम एनुअल सब्सिडी। तो आई एज अ प्राइवेट प्लेयर इज प्रोड्यूसिंग, मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मैं उसके हिसाब से एमआरपी डिसाइड करके मार्केट में सेल करूंगा। सो आई विल बी अर्निंग एंड माय टास्क इज डन, खत्म हो गया। फार्मर कैसे कंज्यूम करेगा? यूनियन गवर्नमेंट पर किलोग्राम पर एनुअल सब्सिडी देगी। इससे क्या होगा? फार्मर्स जब प्रोपोर्शनेट एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा, उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा कि ओवर डोसेज ऑफ यूरिया से तो मेरा सॉइल ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था। पीएनके का कॉम्बिनेशन आया क्योंकि अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी है, प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो ज्यादा प्रोड्यूसर, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन होगा, and you are getting annual subsidy. So it has somewhere enhanced on the proportionate usage of chemical fertilizer. So ये भी एक important domain है। अब चौथी चीज लिखी है joint venture abroad। इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को छोड़कर फर्टिलाइजर सेक्टर में काफी लीप्स एंड बाउंड्स का इंप्रूवमेंट लिया है। हमारे पास बहुत कन्वेंशनल टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर। फ्रॉम इंडोनेशिया टू जॉर्डन टू मोरक्को टू टूनिशिया, माने मल्टी कॉन्टिनेंटल स्प्रेडिंग कंट्रीज में इंडियन फर्टिलाइजर जायंट्स, जिसमें इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, have been taking the leading stand in joint venture abroad. What is joint venture abroad? I as IFCO is investing in Morocco or Jordan or Indonesia or Tunisia. मैं इन्वेस्ट क्या कर रही हूं? अपना टेक्नोलॉजी। वहां की कंट्री का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, वहां की कंट्री में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट होगी। आई विल बी अ जॉइंट वेंचर ओवरसीज कंपनी विद अ बाय बैक अरेंजमेंट, या तो फीड स्टॉक का या तो फर्टिलाइजर का। जो सारे मोबिलाइज्ड एग्जांपल हैं वो फर्टिलाइजर बाय बैक अरेंजमेंट के साथ है। यूरिया ऑफ टेक या फॉस्फोरस ऑफ टेक, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? आप पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी कैपेसिटी के साथ एज जॉइंट वेंचर कंपनी, यू आर अर्निंग, you have arranged buyback arrangement, it is enhancing the self sufficiency in country's domain. Have you understood it, class? So this is facilitating a win-win combination. जो चीज आपने generate करी है आप उसका mobilization ले रहे, and that is the reason fertilizer को PLI में include नहीं किया गया। और जो लास्ट चीज आपने लिखी है फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बिल्कुल वही चीज है जो रिकॉल करो एनएपीसीसी का लास्ट मिशन मोड प्रोग्राम आपको बताया था, स्ट्रैटेजिक नॉलेज, याद आया? या स्मार्ट सिटी में हमने जो 4 एस्पेक्ट आपको बताए थे उसमें चौथा एस्पेक्ट बताया था पैन सिटी, जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड, समथिंग दैट इज कोऑर्डिनेटेड। स्ट्रैटेजिक नॉलेज में बताया सारे डिपार्टमेंट्स विल बी क्रिएटिंग अ नेशनल डेटा इन्वेंटरी कि कंट्री में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट करके हम चीजों को रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। एफएमएस फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम यही वाला लॉजिक है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन लेवल को इंडिया में जज करें तो हमारे पास 144 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर का कंजम्पशन लेवल है। फिगर को जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इंडिया का केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन लेवल 144 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर है। चाइना का केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन 550 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर है। चाइना की सॉइल एग्जॉशन सफर नहीं कर रही, हमारा सॉइल एग्जॉशन सफर कर रहा है। 550 किलोग्राम एंड 144 किलोग्राम में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो चाइना का सॉइल क्यों नहीं एग्जॉस्ट हो रहा, हमारा सॉइल क्यों एग्जॉस्ट हो रहा है? क्योंकि हम डिस्प्रपोर्शनेटली हाई यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी सॉइल हेल्थ कार्ड हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, याद आ रहा है? FMS will make me understand कि हम क्यों सॉइल एग्जॉशन से सफर कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कंज्यूमिंग वेरी लेस केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरी चीज, देयर इज अ मैसिव रीजनल डिस्पैरिटी इन केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। आप 144 का फिगर लेकर पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश को अगर कंपेयर करो, दे हैव गॉट केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन ऑफ मोर देन 200 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर, और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओ 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर से भी कम कंजम्पशन है। अब एक पॉइंट में तो ऐसे फटाफट से आएगा, नॉर्थ ईस्ट में तो हर चीज ही कम होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उसका क्लाइमेट है। केमिकल फर्टिलाइजर को अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करने के लिए आपको वन टाइम वाटरिंग नहीं चाहिए, आपको पीरियोडिक वाटरिंग चाहिए, और अपनी नॉलेज ऑफ क्लाइमेट को अप्लाई करो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर पार मॉइस्ट क्लाइमेट, 9 से 10 महीने बारिश होती है वहां पर, तो केमिकल फर्टिलाइजर वॉश ऑफ हो जाता है, उसको आप डालो भी तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? FMS is to create understanding of why there is regional disparity and what can be done to cater that regional disparity. Are you understanding it? This is national data inventory generation. अपने आप में इतना फुल प्रूफ है फर्टिलाइजर पॉलिसी, एंड इट हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ मोमेंटम कि हमने इसको PLI में इंक्लूड नहीं किया हुआ। पर जब आप केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर ही है, as we are aware of the fact that 69% of our population still lives in rural area. So this is fertilizer sector for you with a full stop. जब एग्रीकल्चर में बता रहे थे तो बताया था कि एक बार और इसके बारे में क्विकली बात करेंगे इंडस्ट्रीज में, आई थिंक इट मेक सेंस है। इफको और क्रिबको जो हैं ये कोऑपरेटिव प्लेयर्स हैं। इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव एंड क्रिबको कृषक भारती कोऑपरेटिव। बाकी सारे के सारे प्लेयर्स पब्लिक सेक्टर प्लेयर। और अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे, अगर आज टाइम परमिट करेगा तो आज, नहीं तो कल बाय डिफॉल्ट इन द रेफरेंस ऑफ PSC सेक्टर्स उसका भी रेगुलेशन हो गया अब हमारे कंट्री में, सो अ क्वेश्चन फॉर्मेट कैन बी देयर। आई थिंक दिस इज डन। आई कंटिन्यू फर्दर विद माय PLI। अब मेरा फोकस जा रहा है स्टील सेक्टर पर, आयरन स्टील इंडस्ट्री। इट टॉक्स अबाउट स्पेशलिटी स्टील। आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट, सो बैक टू माय स्क्रीन शेयर and I request all of you to remain on with your cameras. जो important pointers लिखते जाएंगे उसको साथ साथ कॉपी करते जाना, ताकि फिर टाइम बचे और समझने में हम जल्दी से पिकअप कर लें, because that will give me the understanding of the things easier. PLI कल आपको लिस्ट दे दिया था PLI का, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। And after taking fertilizer, I want to quickly get on to steel. So इसको हटा देते हैं, और ये फ्लैट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ही आप इंक्लूड करते हो ऑटो कंपोनेंट्स। जब आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल बता दिया तो ऑटो कंपोनेंट्स तो इसी में ही जाएगा, और इट इज फ्लैट प्रोडक्ट दैट इनकॉर्पोरेट स्पेशलिटी स्टील। अब फ्लैट प्रोडक्ट की स्पेशलिटी स्टील किस में चला जाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स। आर यू गेटिंग इट? Requirement into the robotics of the artificial intelligence, all of them. Are you getting it? Give me go ahead. जो स्पेशलिटी स्टील है वो आयरन स्टील सेगमेंट का ही एक हिस्सा है। दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज बीन कोरिलेटेड, और इसको आप किसके साथ कोरिलेट कर रहे हो? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो स्पेशलिटी स्टील माने समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फ्लैट प्रोडक्ट विद मोर स्पेसिफिकेशन, मोर। जैसे हमने MFF और स्पेशल फाइबर फॉर जस्टिफिकेशन दिया ना PLI में, जहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लव्स एंड क्लोथिंग रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वही वाला पॉइंटर यहाँ पर ले लें। सो आयरन स्टील सेगमेंट में ये वाले प्रोडक्शन होते हैं। और जब आप कहते हो ना लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट, तो लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो आयरन ओर को प्रोसेस करते हैं, तो वो हो जाएंगे रॉ मटेरियल ओरिएंटेड। और ये रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज आपको सारे आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन में, तो याद करो, सिंहभूम क्रेटॉन, बस्तर क्रेटॉन, धारवाड़ क्रेटॉन, सारा बेल्ट माने छोटा नागपुर प्लाट्यू से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटका तक आपके पास सारे लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट हैं। और लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विदाउट एनी डाउट इज द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर। और दूसरा होता है आपका मार्केट ओरिएंटेड स्टील प्लांट्स। और जब मार्केट ओरिएंटेड स्टील प्लांट्स के बारे में बात करते हो तो दे आर बेसिकली यूटिलाइजिंग प्रोसेस्ड स्टील into any specialty steel. So market oriented is more about specialty. ये किस तरह के प्रोडक्ट को एसोसिएट करेगी? फ्लैट प्रोडक्ट्स को। समझ में आ गया? तो जब आप बात करें किसी भी सेगमेंट की, आप पंजाब के रूपनगर से जिसने शुरुआत करा अपना महिंद्रा के साथ,
उसके बाद आप आ जाओ मानेसर, जहां पर आपके पास मारुति है। उसके बाद आप आ जाओ सनद, द कॉनरबेशन ऑफ अहमदाबाद, जिसने नैनो को सपोर्ट किया, नाउ इट इज एन ऑटोमोबाइल हब, और गेट टू पुणे, और गेट टू कोलकाता, और गेट टू बेंगलुरु, और गेट टू चेन्नई। यहाँ पर तो आयरन और प्रोडक्शन है ही नहीं। तो ये किस तरह के आयरन स्टील प्लांट्स हैं? ये मार्केट ओरिएंटेड आयरन स्टील प्लांट्स। लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट्स तो एब्सोल्युटली क्रेटॉन या गोंडवाना, जिसको आपने कोल बियरिंग स्ट्रेटा के साथ एसोसिएट करा है, वहां पर एसोसिएट हो। एंड इंडिया इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द कंट्री that has been producing both long and flat iron steel product. India is giving high priority to specialty steel under PLI, because specialty steel goes excellently with industry 4.0. and industry 4.0 को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिए कि क्या जस्टिफाई करना है। पहले गो अहेड दो इन्फोग्राफिक्स दिखा रहे हैं, उसके बाद आते हैं स्टील पॉलिसी पर। ध्यान से नोटिस करना और समझना दोनों को। आई थिंक दिस स्पीक्स वेरी इजीली। जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन वर्ल्ड की बात करते हो, इंडिया भी उसका कोई एक्सेप्शनल फैक्टर नहीं है। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो 1 2 3 क्या है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो आप जब 1 2 3 को एसोसिएट कर रहे हो तो वी नॉर्मली से दैट द कंटेम्पररी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बिल्ट ओवर 3, जहां पर ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ, उसी पर हमने बिल्ड किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। क्योंकि जो चीज आपने कंप्यूटराइजेशन से शुरू किया, उस पर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, yes or no, these are the things that are built up over इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3। 1 और 2 की बात करें तो 1 goes with mechanization, 2 goes with electric energy with mass production. So this was something that led on to the growth. वाटर, स्टीम पावर से इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट। बिकॉज आज की डेट में भी आप याद करो कि हमने बोला था पीएलआई इनकॉर्पोरेट आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। सो ऐसा नहीं है कि हमने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक को खत्म कर दिया, इसका इम्प्लीकेशन है। And that is the reason India is even today running. It is hardware in the electronics. So Ministry of Electronic and Information Technology, Ministry of Electronic and Information Technology ने 2.0 PLI अनाउंस किया है IT हार्डवेयर स्कीम के। And it basically is involving the two things. आपको पता है we are talking about what? It's production capacity enhancement and it is export capacity enhancement. So अपने दिमाग से ये मिथ हटा देना कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 से 4 पर गए तो 3 की वैल्यू खत्म हो गई। जो आप स्टीम और वाटर पावर की बात कर रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 में, क्या आज भी उसका इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल होता है। मास प्रोडक्शन विद इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? सो यू हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ इट। व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर सेगमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सपोर्ट एनहांसमेंट से we are targeting, and I've talked about that with the demographic dividend, so you have to take up the reference, 75,000 direct job creations को हम टारगेट कर रहे हैं। So PLI with IT and hardware can be applied on very clearly with it, और 6 years का इसको टारगेट देकर हम चल रहे हैं। So you have to take up the 3 is being built over as 4, पर इसमें एक डिस्टिंक्शन है जो आपको जस्टिफाई करना है। Have you copied down the things that is visible here? जल्दी से go ahead दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक जो सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है, I'll just move it here. I try to adjust it within this frame. थोड़ा सा ध्यान से विजुअलाइज करना हम क्या समझा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को अगर हम जनरली कंपेयर करें, अगर हमने यहाँ पर टाइम प्लॉट किया है और यहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम को प्लॉट किया है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे दिखाई देता है, in the earlier 3 generations, they have been with a linear pace of growth. So their growth pace have been linear. जिसमें आप Industrial Revolution 1, Industrial Revolution 2 and Industrial Revolution 3 को जज कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप जज करते हैं Industrial Revolution 4, which is actually building over 3, it has gone like this. It's exponential growth. और ये exponential growth एक ऐसा growth है which is by default asking us to believe and understand, and this is 4. This is asking us to believe and understand कि all the conventional jobs in coming 5, 10, 6 years is going to become invalid.
So there is human skill development requirement here. I hope you are understanding. And this is where we take up the utilization of that specialty steel. इस पेज में आपने सब कुछ लिख लिया और समझ लिया तो हमें गो अहेड देंगे, हमें आपको एक और इन्फो, ये डिफरेंस हमेशा अपने दिमाग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग एंड कंज्यूमर इंटरनेट, इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, wearables, phones, televisions, appliance, home monitoring, home automation, heavy machinery, transportation, smart cities, automation, factories, healthcare. आ रही है बात समझ में? ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. That specialty steel is required for transportation, heavy machinery, smart cities. Smart cities के construction में आपने क्या इस्तेमाल करना है? You will be utilizing what is called long product. and raise करें, retrofitting करोगे, redevelopment करोगे, pan city development करोगे, चाहे green field development करोगे. और जब हैवी मशीनरी या ऑटोमेशन या फैक्ट्रीज पर आओगे तो ये सारे के सारे तो फ्लैट प्रोडक्ट्स ही हो गए. बिल्कुल वही चीज आप देखें, फोन्स एंड टेलीविजन्स, आप बोलोगे ना टेलीविजन्स में थोड़ी ना आयरन स्टील का इस्तेमाल होता है. देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स दैट गोज विद इट. स्मार्ट टेलीविजन, इट्स नो लॉन्गर कोरिलेटेड विद डिश एंटीना कनेक्टिविटी. आई थिंक दिस इज डन. और जहां पर अप्लायंस आ गया तो यहाँ पर जरा PIL का ये वाला फैक्टर भी आपको समझा दे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग. ऑफ कोर्स हमें ज्यादा स्कोप देता नहीं है स्टडी करने के लिए. जब आप अप्लायंस की बात करते हो, आई यूज द सेम एरिया है, तो इसमें हमारा PLI में अपनी कल जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको जरा ध्यान से देखो. व्हाइट गुड्स आर बीन इंक्लूडेड. व्हाइट गुड्स एंड ब्राउन गुड्स are the good categories that are being demarcated largely with the home appliances. White goods होते हैं large home appliance और brown goods होते हैं medium to small appliances. जैसे अगर large में लें तो refrigerator, washing machine, dishwasher, etc. etc. और जो brown goods हो गए वो हो गए मिक्सर, जूसर, हैंड ग्राइंडर, जो आप टिपिकल एक किचन अप्लायंसेस को नोटिस करते हो. हैंड रेस करो. क्या इसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं? एंड स्पेशलिटी स्टील इज डेफिनेटली कोरिलेटेड टू समथिंग स्पेशल. जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में जाओ, मेडिसिन में जाओ, ऑटोमेशन में जाओ. लेकिन फिर ऑटोमेशन तो होम अप्लायंसेस में भी आ गया. तो स्पेशलिटी स्टील को हाईलाइट करने का मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को अप्लाई करना. एंड PLI हैज बीन अप्लाइड टू द व्हाइट गुड्स, नॉट टू द ब्राउन. आपकी कल की लिस्ट हमने बनवा दी थी, आप वहां नोटिस कर लो व्हाइट गुड्स लिए. Whenever you talk about specialty steel, always keep in your mind that a specialty steel is related to carbon steel, alloy steel, stainless steel, long product, flat product, सब. बस आपको जज क्या करना है कि भाई हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4th लेवल पर पहुंच गया है. और 4th लेवल पर जब आप ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैज टू गो ऑन कंप्यूटर्स. बट कंप्यूटर्स में भी तो हार्डवेयर सेगमेंट में स्टील चिप्स का रिक्वायरमेंट है. ये सारी बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं एंड नॉर्मली हम लोग अपने स्टडी में इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते हैं फिर क्वेश्चन पेपर में फंस जाते हैं. अब हम आगे अपने बोर्ड पर दोबारा से. When I take reference of steel sector, I need to give myself understanding of, क्योंकि स्पेशलिटी स्टील को तो आप रेफरेंस दे ही रहे हो तो इतना ही रखते हैं. I can take reference of steel policy. It replaced 2005 steel policy. And when I take reference of steel policy 2017, it is essentially oriented towards domestically manufactured iron steel. लिख लिया तो जल्दी से गो अहेड दो और समझा देते हैं, फिर हम इसके बाद इसको इसका रेफरेंस लेकर आगे बढ़ते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के साथ एसोसिएट करके खत्म करेंगे, क्योंकि दैट विल गिव मी अ लीड. वो मुझे एक ऐसा लीड दे देगा जो मुझे अपने आप ही ले जाएगा टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले गो अहेड दो. आप थोड़ा ध्यान से सुनना, सबने लिख लिया तो पेन ड्रॉप कर लीजिए और ध्यान से सुनते जाएंगे. 2005 की स्टील पॉलिसी को हमने 2017 में रिप्लेस किया. स्टील पॉलिसी का इंपॉर्टेंस आज भी है क्योंकि जो आपका PLI है दैट इज लार्जली फोकसिंग ऑन स्पेशलिटी स्टील. तो स्पेशलिटी स्टील में मुझे पता है दैट आई एम टेकिंग एवरी कैटेगरी ऑफ स्टील टू माय स्ट्राइड, बट उसका जो यूटिलाइजेशन है वो इट इज मोर रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. सो स्टील पॉलिसी का जो रेलेवेंस है वो इंपॉर्टेंट है और वो मेरे नॉलेज में होना चाहिए.
China, as one of the leading producer of iron steel, is the country that has been known for its dumping measure. डंपिंग तब होता है जब आप पर्पसफुली लो प्राइस स्टील को एक्सपोर्ट करें अपने कंट्री से. इट इज एन अटेम्प्ट टू किल द डोमेस्टिकली फ्लरिशिंग प्रोड्यूसर. So domestically manufactured iron steel product, DMISP, to be given priority in all government tenders, whether it is specialty steel or any other steel, is by default an anti-dumping measure that has been given priority in the steel policy 2017. ये ऑटोमेटिकली मुझे ऑब्जेक्टिव नंबर 2 को जस्टिफाई करने में मदद करेगी. वो क्या है? I want to increase my steel production capacity to 300 million tons by 2030. अगर आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन स्टील प्रोडक्ट को सारे गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रायोरिटी देंगे तो अपने आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी. जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का स्कोप ज्यादा होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स बाय डिफॉल्ट पार्टिसिपेट करेंगे. सो दिस इज एनकरेजिंग प्राइवेट प्लेयर्स बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी. कंसोलिडेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है. 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहे हैं. एनसीईआरटी को ओपन करके एक बार रीड कर लेना. सारी लिस्ट हम यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे. हमने अपनी आयरन स्टील कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन जो है, हम टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड को साइड में हटा देते हैं. आज आप उसको टाटा स्टील बोलते हो, पर 1907 में इट मार्क्ड अप द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया. और तब उसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड. आज की डेट में भी ओल्डेस्ट फंक्शनिंग प्लांट है जमशेदपुर में. टाटा स्टील अपना दूसरा प्लांट मोबिलाइज कर रहा है, धमरा पोर्ट. रिकॉल करो धमरा किस कंटेक्स्ट में पड़ा था, जल्दी याद करवाओ, जल्दी से याद कराओ सब लोग. धमरा आपके स्टडी में 2 दिन पहले आया है, मुझे जल्दी से याद कराइए किस कंटेक्स्ट में. इनर पोर्ट इन ओडिशा एंड वी लर्नड इट विद प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नेशनल गैस ग्रिड. यस और नो? कुछ नहीं याद रखो. यस नो का भी जवाब नहीं आएगा. याद आया कि नहीं आया? जगदीशपुर से बोकारो, याद आ रहा है कि नहीं? यस. अच्छा, आप सोच कर देखो, आप जब टाटा स्टील की शुरुआत, चलो टाटा स्टील प्राइवेट प्लेयर हटा दो, जब आप पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स की बात करते हो और एनसीईआरटी के पेजेस को टर्न करते हो तो आपको बड़े सारे पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स मिलते हैं. जो मुझे सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर प्लेयर मिलता है, पुराना इन टर्म्स ऑफ एज कमीशन पब्लिक सेक्टर, वो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड. हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपना आयरन स्टील प्रोडक्शन प्लांट राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई में स्टैब्लिश किया 1957-1962 में. फिर दूसरा नाम मिलता है बोकारो स्टील लिमिटेड, जिसका फंक्शनिंग प्लांट बोकारो में. फिर तीसरा नाम मिलता है इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसका फंक्शनिंग प्लांट वेस्ट बंगाल में है. दैट इंक्लूड्स बर्नपुर, हीरापुर एंड कुल्ती. मुझे ये सारे प्लेयर्स आज की डेट में दिखते ही नहीं है तो मुझे नाम याद नहीं रखना, पर मुझे याद क्या रखना है कि राउरकेला plant was commissioned as plant of Hindustan Steel Limited way back in 1957. तो जब एनडीए गवर्नमेंट पार्ट 1 आई थी 2015 में, तो 2017 में प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड राउरकेला प्लांट टू इंडिया एज आयरन स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो क्या हम अपने दिमाग में डालें कि हमने राउरकेला में एक और आयरन स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया? नहीं. हमने जो फंक्शनिंग प्लांट था राउरकेला का, उसको रिवैम्प करके, उसको रेनोवेट करके डेवलप किया है. So when it was commissioned as HSL plant. आज की डेट में HSL, BSL, ISCO जैसी कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं है. सबको सब्ज्यूम कर दिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड केम इनटू बीइंग इन 1975 और HSL का राउरकेला प्लांट 57 से काम कर रहा है. तो जब आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आज एक महारत्ना कंपनी बोलते हैं, ऑफ कोर्स विद द रीस्ट्रक्चरिंग थिंग्स आर मेकिंग अ चेंज, एज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बोलते हो, तो इसने सब्ज्यूम कर लिया, इसने अपने सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स को अपने साथ ले लिया. आज HSL नहीं है, BHSL नहीं है, ISCO नहीं है, कोई भी नहीं. विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड ऑफ भद्रावती कर्नाटका कंटिन्यूज टू हैव इट्स एग्जिस्टेंस. तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हमने एक सुपर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना दिया. क्यों बनाया? क्योंकि मुझे अपना पब्लिक सेक्टर डोमेन को कंसोलिडेट करना था, बिकॉज स्टील हैज बीन इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट इज बीन आइडेंटिफाइड एज एसेंशियल गुड्स, and steel is one of the very significant controlled item whenever I have to control inflationary trends.
तो अगर मुझे अपने इस कंट्रोलिंग पावर को रखना है तो मुझे पब्लिक सेक्टर में रखना पड़ेगा स्टील, एंड स्टील इज वन ऑफ द कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। अभी लेकर जा रहे हैं आपको वहां पर। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कंसोलिडेट करना और रीवैम्प करना, ताकि जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक है, अब आप खुद से सोच कर देखो, टाटा स्टील का जो धमरा प्लांट है अब बन रहा है, और जो जमशेदपुर प्लांट है वो 1907 में बना था। तो 1907 की टेक्नोलॉजी आज की डेट में तो आउटडेट हो गई, 1957 की टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। तो इंडियन आयरन स्टील सेक्टर कैसे compete करेगा ग्लोबल कंपिटिटर से, कैसे प्रोड्यूस करेगा स्पेशलिटी गुड्स, उसके लिए रिवैम्पिंग तो चाहिए। दैट इज योर स्ट्रैटेजी इन द स्टील पॉलिसी। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। उसके अलावा आपको बताया है सीपीसीबी जब पढ़ रहे थे एनवायरमेंट में, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो 15 मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उसमें सारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड थी, आयरन स्टील इंक्लूडेड है उसमें। जो आपका EIA मॉडिफिकेशन है 2020 का, उसमें आपने केमिकल इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्ट किया है, मेटलर्जिकल को नहीं किया है। याद आ रहा है कि नहीं क्लास? हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा भाई आज क्लास में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड EPA में जब पढ़ रहे थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तब हमने आपको CREP और CEPI बताया था। CREP is a charter on corporate responsibility on environmental pollution. It is applicable to the corporates who are engaged into the production capacity building of the 15 most polluting industries have to take additional corporate responsibility, कि ना तो emission होगा, ना waste generation होगा, ना waste water discharge होगा, and etc etc. मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज उन 15 इंडस्ट्रीज में है। EIA मॉडिफिकेशन जो ड्राफ्ट हमने बात की थी, जिसको डाइल्यूट किया गया, ex facto clearance, violent clearance, big project exempted, public domain से strategic को आउट करा, याद आ रहा है कि नहीं? उसमें आपने एग्जेम्पशन दिया है केमिकल इंडस्ट्रीज को, मेटलर्जिकल को नहीं दिया है, और मेटलर्जिकल इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो पोल्यूशन किसकी वजह से है? प्लीज रिकॉल, सेकेंड प्रिंसिपल कंज्यूमर ऑफ कोल इन आवर कंट्री आफ्टर थर्मल पावर प्लांट इज आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री का कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इस वजह से भी कम होता है क्योंकि हमारा कोल तो बिटुमिनस है, और मुझे चाहिए कोकिंग कोल। कोकिंग कोल चाहिए तो फिर कोकिंग कोल के लिए आप इंपोर्टेड एसेट पर डिपेंडेंट है। तो मेरे लिए डुअल बेनिफिट होता है जब हम पॉलिसी का नेक्स्ट पॉइंटर को नोटिस करते हैं। CREP कंप्लायंस में न्यू स्टील पॉलिसी टॉक्स अबाउट ऑल स्टील प्रोड्यूसर्स आर मूविंग टुवर्ड्स चेंजिंग देयर कोल डिपेंडेंसी टू नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। टू विन विन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इंपोर्ट आइटम पर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, आपका CREP लोड कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम मोर कंप्लायंट टुवर्ड्स EIA। लॉजिक आ गया समझ में? एंड इन बिटवीन हमने जो MMTC लिखा है, इट्स मिनरल्स मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। MMTC regulates the export import of all the major metals and minerals। 2005 के स्टील पॉलिसी से एप्लीकेबल है। हाई ग्रेड आयरन ओर हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं होता। अब हमारे कंट्री में तो मैग्नेटाइट आयरन ओर प्रोड्यूस ही नहीं होता, वी आर लार्जली प्रोड्यूसिंग हेमेटाइट। तो हाई ग्रेड का मतलब क्या है? हाई ग्रेड आयरन ओर वो आयरन ओर है जिसमें 60% से ज्यादा आयरन कंटेंट हो। हाई ग्रेड आयरन ओर में 60% से ज्यादा आयरन कंटेंट को हमने एक्सपोर्ट से बार किया है। रीजन, आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की अवेलेबिलिटी को कम करोगे, और अपनी रिसोर्स सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए MMTC का ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है जापान जैसी कंट्रीज को छोड़कर। जापान इज द एग्जांपल ऑफ द कंट्री दैट इज इन लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट ऑफ इंपोर्टिंग हाई ग्रेड आयरन ओर फ्रॉम इंडिया। सो जापान जैसी कंट्रीज कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज इंडिया डू नॉट एक्सपोर्ट हाई ग्रेड आयरन ओर एज रॉ, बिकॉज आई वांट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रॉ मटेरियल टू माय डोमेस्टिक प्लेयर्स। सारे पांचों पॉइंटर्स क्लियर हो गए तो गो अहेड। स्पेशलिटी स्टील को आउट ऑफ बॉक्स में सिर्फ इस दिमाग पर रखना है कि हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 विद इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग एज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ एसोसिएट करके स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी मेडिसिन इक्विपमेंट सबके बारे में बात करें। आज की डेट में आपने खुद देखा है, देयर आर सो मच ऑफ द सोफिस्टिकेटेड मशीन इक्विपमेंट्स इन द मेडिकल स्ट्रीम। उनके प्रोडक्शन में भी तो आपको स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीजों को आप स्पेशलिटी स्टील में लेते हैं, तो स्पेशलिटी स्टील को दिमाग में रखकर कोई हेवी बर्डन वाला पॉइंट नहीं लेना है। इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0।
That is how we can easily associate. अब आपको जज करना है स्टडी दैट इज टेकिंग अस फर्दर. तो हमने ये आपको स्पेशलिटी स्टील while giving you industrial revolution 4.0 white and brown goods भी बता दिया and PLI in the IT hardware sector भी बता दिया. So major categories of manufacturing कर दिया. अब जो बाकी आपका ट्रांसपोर्टेशन के साथ है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पिकअप करेंगे. अब हम आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते समय ध्यान से अप्लाई करना. इंडिया में जब आप टर्म इस्तेमाल करते हो, कैन आई प्रोसीड, हैंड रेस करके बताओ जल्दी से. अच्छा, अब यहाँ ना ध्यान से नोटिस करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज द टर्म दैट वी अप्लाई एंड दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग. भाई हम तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम इंडियन टर्मिनोलॉजी में देखें तो इंडस्ट्रीज. इन इंडिया व्हेन आई यूज द टर्म इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, तो उसमें क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होता है? नहीं. इंडस्ट्रीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेट, जब आप इंडिया में इंडस्ट्री, क्योंकि सर्विस सेक्टर बोलते हैं, फिर उसको आप आगे ले जाओ. सर्विस सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें टूरिज्म आ जाएगा. तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी. जैसे ही आप बोलते हो इंडस्ट्रीज, तो अपने दिमाग में आता है भाई 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हमेशा बोली जाती है. 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हमेशा बोली जाती है ना. अब ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? काम एकदम आसान कर दे रहे हैं. इट इज कोल, इट इज नेचुरल गैस, एरिया माइनिंग में पढ़ चुके हो आप. इट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो अपडेशन था कल बता दिया. आ गया 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री, हैंड रेज. यहाँ पर एक एडेड इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन नहीं है कोर. इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आर दी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री इज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन. अच्छा, इसमें एक बॉक्स आइटम, नीति आयोग इज पुशिंग स्ट्रॉन्ग. नीति आयोग इज पुशिंग स्ट्रॉन्ग कि भाई एल्यूमिनियम को भी ऐड कर दो कोर सेक्टर इंडस्ट्री में. तो मेरे कोर सेक्टर इंडस्ट्री में, मेरे नॉलेज में एल्यूमिनियम और स्टील नहीं, एल्यूमिनियम और सीमेंट नहीं है, तो हम इसको जल्दी से ऐड करेंगे. नीति आयोग इज पुशिंग एल्यूमिनियम टू बी इंक्लूडेड इन कोर सेक्टर. अभी तक इंक्लूड किया नहीं है. अब ये दोनों चीजें हो सकती है कि आप 8 कोर सेक्टर की जगह 9 बना देंगे, या आप कोई एग्जिस्टिंग को हटा देंगे. बात समझ में आ रही है? हम कोल को लगातार सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोल का प्रोमिनेंस इन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड सफिशिएंटली. आप जब 2070 तक नेट जीरो को टारगेट करोगे, तब भी कोल का इंपॉर्टेंस 25 से 30% रहेगा. तो कोल को रिप्लेस तो नहीं कर सकते. हो सकता है सीमेंट को कर दें, या अब तो वो तो स्पेक्यूलेटिव केस है. तो या तो 9 कोर सेक्टर इंडस्ट्री बन जाएगा, या 8 ही रहेगा, किसी को आप हटा दोगे. Why aluminium is being pushed to be included in core sector industry? Because aluminium is most versatile related metal. और ये एक ऐसा मेटल है जिसका फीडबैक रिलेशन जाता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और इलेक्ट्रिसिटी तो कोर सेक्टर में है ही. इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्यों जाता है? एल्यूमिनियम जाएगा बॉक्साइड के साथ, बट एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन कॉस्ट का लगभग 60% इनपुट कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एक बहुत एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है. इसलिए मैक्सिमम ऑफ एल्यूमिनियम प्लांट्स इन आवर कंट्री, मैक्सिमम ऑफ एल्यूमिनियम प्लांट्स इन आवर कंट्री आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. आपको हिंडाल्को याद आ रहा है? बाल्को बताया था माइनिंग में, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हिंडाल्को, बाल्को, अगर, क्योंकि सारे के सारे नाम एकदम सेम जैसे सुनाई में देते हैं, ये एक एडिशनल बॉक्स आइटम क्रिएट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. नीति आयोग इज पुशिंग एल्यूमिनियम टू बी इंक्लूडेड इनटू कोर सेक्टर इंडस्ट्री. इंक्लूड नहीं किया गया है. कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज अभी भी 8 ही हैं, एल्यूमिनियम नहीं इंक्लूडेड है. तो ये मिस इंटरप्रिटेशन मत लेना, हमने नहीं कहा कि एल्यूमिनियम इंक्लूडेड है. हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम को पुश कर रहा है. तो भाई क्यों पुश कर रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम इज आइडेंटिफाइड टू बी दैट इंडस्ट्री विच इज हैविंग दैट मेटल which is second most dominant metallurgical industry after iron steel. but एल्यूमिनियम के साथ जो आप बेनिफिट्स एसोसिएट करते हो वो आयरन स्टील के मुकाबले में बहुत हाई हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्सेटाइल है. आप कोई भी चीज सोच कर देखो आज की डेट में, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर, मेडिसिन साइंस से लेकर, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से लेकर, यूटेंसिल से लेकर,
mobilization, production and transmission of electricity. Aluminium is everywhere. And that is the reason aluminium का dictum रहा है grow the market and grow with the market. इसका जो सबसे important challenge है वो है electricity input cost. इसलिए एल्यूमिनियम के जितने भी आपको प्लांट दिखाई दे, तो नाल्को एंड हिंडाल्को इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और ये सब प्राइवेट प्लेयर. हिंडाल्को है आदित्य बिरला ग्रुप, बैल्को और माल्को है स्टरलाइट. इन लोगों ने एक्वायर कर लिया मेजॉरिटी ऑफ इट. कैप्टिव माइनिंग में आपको समझाया था, याद आ रहा है कि नहीं? हैंड रेज करो भाई, कौन कौन सी मेजर फॉर्म्स हैं जिनके पास कैप्टिव माइंस हैं? याद आ रहा है? कैप्टिव माइनिंग एंड कमर्शियल माइनिंग का गैप को हमने ब्रिज करने की कोशिश की है. सिर्फ एक हैंड रेज मिल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? और कोई भी इनका प्रोडक्शन एरिया को आप कंपेयर करना चाहो, नाल्को मुझे दिखाई देता है कोरापुट में, हिंडाल्को दिखाई देता है हीराकुड, तीनों ओडिशा में. हिंडाल्को मुझे दिखता है रेणुकूट में, रेणुकूट इज इन उत्तर प्रदेश. बैल्को मुझे दिखाई देता है कोरबा में छत्तीसगढ़. आपको कोल फील्ड सारे नाम पता है. और जो नाल्को है वो है मेतुर, दैट इज स्टैनले रिजर्वॉयर कावेरी, सो मेतुर लिख देते हैं. मद्रास एल्यूमिनियम. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से नोटिस करना. मेतुर, रेणुकूट, हीराकुड, ये बॉक्स बना दिया. एनएचपीसी के पावर प्लांट्स हैं. और अब बॉक्स बना रहे हैं अनुगुल, ये तालचर के पास में पड़ता है. और कोरबा अपने आप ही बोल रहा है. ये क्या है? एनटीपीसी. आपको बात समझ में आ गई कि एल्यूमिनियम के सारे प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड है. रेणुकूट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिजर्वॉयर, साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, रिहंद रिवर पर है एनएचपीसी का पावर प्लांट. एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ा कंपलसरी है और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इसलिए एल्यूमिनियम के ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसकी इतनी वर्सेटाइल डक्टाइल यूटिलिटी है कि नीति आयोग इसको पुश कर रहा है दैट इट शुड बी इंक्लूडेड टुवर्ड्स कोर्स. सो आई थिंक दिस गोज सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू एल्यूमिनियम. और अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट इज आइडेंटिफाइड टू बी टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. कोर सेक्टर इंडस्ट्री में काउंट करते हैं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सीमेंट, क्योंकि सीमेंट के बारे में हम बात नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्री, कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, टोटली इन प्राइवेट हैंड सिंस 1990, डी लाइसेंसिंग एंड डी कंट्रोल. अब पब्लिक सेक्टर प्लेयर का काम नहीं है. और सीमेंट के साथ आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो प्रोड्यूस कर ही रहे हो एज द डिफरेंट कमर्शियल वैरायटी. And India is the second major producer of cement in world. और सीमेंट के लिए जो कंजम्पशन है वो कंस्ट्रक्शन है. तो आप अपने सारे स्टेप्स ऑफ स्टडी जिसके साथ आप यहाँ तक पहुंचे हो और जो अब हम आगे भी लेंगे, मतलब जितना सबअर्बनाइजेशन, जितना कनाल कंस्ट्रक्शन, जितना ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, जितना रोडवेज कंस्ट्रक्शन, जितना सिविल एविएशन कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में चाहिए वो चाइना में भी नहीं चाहिए. तो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट व्हेन इट कम्स टू सीमेंट. और सीमेंट इज among the chemical industries which is counted as most polluting. और सीमेंट is the only industry that has actually substituted coal by electricity and natural gas. सीमेंट का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब हम सीमेंट को कहते हैं that we are producing cheapest ex factory price सीमेंट, तो मेरा सीमेंट का सैग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका हैंडलिंग चार्जेस बहुत हाई है. हैंडलिंग चार्जेस इनकॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माने रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सब इतना एक्सपेंसिव है कि आपने एक एक्स शोरूम प्राइस ऑटोमोबाइल एंड ऑन रोड ऑटोमोबाइल प्राइस डिफरेंस जानते हो ना? एक शोरूम प्राइस जो है वो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन है. पर जब कहते हैं ना ऑन रोड प्राइस, तो ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आता है बिकॉज देयर आर डिफरेंट टैक्सेस दैट आर बीन अप्लाइड. तो हम एक्स फैक्ट्री प्राइस सीमेंट तो चीपेस्ट बना रहे हैं, लेकिन जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाता है तो मेरा सीमेंट का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एज. इसलिए जो हमने एल्यूमिनियम के लिए लिखा वही लिख रहे हैं यहाँ पर, फीडबैक डेवलपमेंट विद इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो भारत माला है, चाहे वो सागर माला है, चाहे वो सिविल एविएशन है, चाहे जल मार्ग विकास मंत्रालय है, they all are oriented towards providing cheap and competitive movement of cement. ये एक important addition आप अपने information में ले सकते हैं.
हैंड रेस कीजिए जल्दी से। सीमेंट और एल्यूमिनियम के बारे में बात नहीं कर पाए थे, ऐड कर दिया। सीमेंट को तो बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते थे क्योंकि सीमेंट तो कोर सेक्टर में इंक्लूडेड है। एल्यूमिनियम को नीति आयोग पुश कर रहा है कि भाई डालो, अभी डला नहीं है, अब जनरल इलेक्शंस के बाद ही डलेगा, उससे पहले तो कुछ डलना नहीं। बट इन एनी केस, I have got 8 core sector industries, and as soon as I list 8 core sector industries, मेरे को समझ में आ गया कि industries is much wholesome term than manufacturing। और हम तो इस समय मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग पढ़कर पहुंचे हैं यहाँ पर। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हो तो आता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। जब आप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में बात करते हो, यू आर वेरी क्लियरली टेकिंग इनटू रेफरेंस मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो जब आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लोगे तो ना माइनिंग पॉलिसी इसमें इंक्लूड हो रही है, ना इंक्लूड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। तो what are the important factors that you have to take into consideration? National manufacturing correlates to, अब इसमें जो सबसे बल्कियर है वहां से शुरू कर सकते हैं, या जो हम पढ़ चुके हैं वहां से कर सकते हैं। आपको सारे पॉइंटर्स पता है, 2011 से आप इसको एसोसिएट कर रहे हैं। National manufacturing policy correlates with, national manufacturing policy aims at creating 100 million additional jobs that are correlated with demographic dividend, because we have surplus job seekers than the jobs. So national manufacturing policy which orients towards creating this 100 million new jobs and have been added with, so ये addition जो आ गया वो NDA provision पर आ गया, so 100 million direct jobs, and what we have added is pillars of resurgent India. And what are the pillars? क्योंकि NIMZ's इंडस्ट्रियल टाउनशिप को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, MSMEs और स्फूर्ति साथ में जुड़ेंगे। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डोमेन का स्टडी रहेगा, और मेक इन इंडिया को हम अलग से जज करेंगे। बट बिफोर गोइंग देयर, कोई भी चीज, when I say new infrastructure, it can be related to urban infrastructure, transport infrastructure, urban rapid transit system, monorail, communication, 5G, 4G. 5G is what we are moving on with the reference of urban areas and rural areas. We are taking a transition from third generation to fourth generation. And this is where we are taking up that all startups. बाकी सब चीजें तो जैसे जैसे NIMZ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स वगैरह को इंक्लूड करेंगे आता जाएगा। ये जो स्टार मार्क पॉइंटर किया इसको बहुत ध्यान से देखो और इसको बहुत ध्यान से समझ लो। ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ मेजर मॉडिफिकेशन दैट वी आर टेकिंग अप। ठीक, इट इज अबाउट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। Central public sector enterprises have been correlated with new public sector enterprise policy, जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी क्लासिफाई करती है CPSEs को अब 2 कैटेगरीज में। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही है। एक कैटेगरी क्या है? स्ट्रैटेजिक, और दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉन स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक सेक्टर को आपने 4 ब्रॉड बास्केट में डिवाइड किया हुआ है। कौन से ब्रॉड बास्केट है जिसमें आपने इनको डिवाइड किया हुआ है? स्ट्रैटेजिक इंक्लूड्स नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी। इस तरह से बहुत आसानी से याद रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम आता है तो आई एम इन द पोजीशन ऑफ रिकॉलिंग इट एंड मेकिंग द करेक्ट चॉइस। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एसोसिएट करता है, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेस के साथ जो एसोसिएट करता है, स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में डिमार्केट कर रहे हैं। और जो चौथा है वो आप लेकर चल रहे हो फाइनेंशियल। ठीक है, सर्विसेज तो हम अभी नहीं ले रहे, बट लेस गवर्नमेंट कंट्रोल लिखा, उसको जस्टिफाई नहीं। इसमें कुछ आप एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो स्पेस और डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। जब आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो यू आर टेकिंग अप ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। आई एम राइटिंग कम्युनिकेशन। जब आप एनर्जी और मिनरल्स की बात कर रहे हो तो यू आर टेकिंग अप मेजरली पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स। पेट्रोलियम भी आ गया, कोल भी आ गया एंड अदर मिनरल्स। आपको हमने मिनरल्स का कैटेगरी बता दिया है, क्रिटिकल मिनरल्स हैंड रेस कर दो। न्यूक्लियर मिनरल्स में से भी 6 हटा दिए, वो सारी नाम आप जानते हैं। और जब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस।
तो जो आपके 4 बेसिक बास्केट हैं उसके कुछ सब कैटेगरीज आप ले सकते हो। ये तो हुआ स्ट्रैटेजिक, ठीक, ऐसे करके इसको जूम करते, ये हुआ स्ट्रैटेजिक। बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ CPSC will be maintained in strategic sector only. All the non-strategic, माने जितने भी पब्लिक सेक्टर प्लेयर इन 4 कैटेगरी के बियॉन्ड है, will be eventually disinvested, diluted और shut down, जैसा भी केस हो। इसमें बस आपको एक याद रखना है that there are certain exempted category, not for profit, non profit लिख लो या not for profit लिख लो, that are supporting weaker and vulnerable। मतलब आप अगर स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में नहीं आ रहे हो फिर भी आप CPSC रहोगे। अगर यू आर नॉन प्रॉफिट companies that are registered under the Companies Act 2013, registered under Companies Act 2013, and you are not earning profit and you are majorly functioning for the welfare of the society, तो आपको कोरिलेट करा जाएगा in sustaining your status as CPSC। ये किसका डोमेन है? ये डोमेन है जो हमने यहाँ लिखा था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। हैंड रेस कर दीजिए, यही है न्यू सेक्टर का डोमेन। अब आपका जो न्यू PSC पॉलिसी है वो कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मिनरल और फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर बाकी सारी CPSCs को या तो डिसइन्वेस्ट किया जाएगा या उनको शट डाउन कर दिया जाएगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आपके पास एक छोटा सा लिस्ट इंक्लूडेड है, वो आप ले सकते हो, दैट आर लार्जली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेगमेंट व्हिच इज एसोसिएटेड विद non-profit making, or they are functioning towards the welfare of the grassroots population. You'll give me go ahead, हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। I'll be repeating now, आगे अब हम कल बढ़ेंगे। आपके सामने पूरा पेज तैयार किया है। This is giving us the reference of concluding remark, if I say, but it is a big conclusion that we have to draw with the manufacturing sector. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के 5 पॉइंटर्स अभी हमने टच नहीं करे। हमने 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं और उस जॉब क्रिएशन के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक तो बड़ा ही सिंपल है। वी आर सिटिंग एट डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन। हमारे पास 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज ग्रुप। अगर वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन के लिए आप गेनफुल जॉब क्रिएशन नहीं करोगे, यू विल बी क्रिएटिंग डेमोग्राफिक कर्स फॉर द कंट्री, एंड इंडिया लाइक कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इट। सो हम क्या कर रहे हैं? हम मेक इन इंडिया बस टर्म है, but that is incomplete. National manufacturing policy orients towards or incorporate or aims at mobilizing out the programs or prospects which is oriented towards creating new gainful jobs and mobilizing the pillars of resurgent India. Of these 5 pillars, when I talk about the pillar about new sectors में आप क्या कर रहे हैं? You are creating new sectors approach, minimum government and maximum governance, and that is the reason new PSC policy 2021 बड़े आराम से समझ में आती है। 2021 न्यू PSC पॉलिसी क्या कह रही है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन रखा गया था व्हेन इंडिया मोबिलाइज्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। आज की डेट में पॉइंट ये है दैट यू हैव टू एनहांस मोर लिक्विडिटी, मोर कंपिटिटिवनेस, मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इट शुड नॉट बी, एंड दैट इज द रीजन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, एक जो अट्रैक्टिवनेस था गवर्नमेंट जॉब का वो यूथ के बीच में इसलिए भी तो कम हो गया ना, क्योंकि नाउ यू आर नॉट हैविंग द पेंशंस। तो क्यों है? कॉस्ट कटिंग जरूरी है ना। सारी जिंदगी भर आपको पेंशन देंगे तो वो तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मेजर बर्डन है। वी आर अ ग्लोबलाइज्ड ओपन इकोनॉमी, गवर्नमेंट इज नॉट अर्निंग दैट मच नाउ which it used to earn earlier when there was quantitative restriction. So things are required to be molded on the contemporary age. So जो new PSC policy है वो क्या कहती है? CPSCs जो
कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुई हैं 2013, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, उनको तो आप सीपीएसई का टैग देते रहोगे एज एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, हटा दो साइड में। उसके अलावा जितनी फंक्शनिंग सीपीएससीज हैं, अगर वो स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में, तो स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में 1 2 3 4 काउंट करोगे तो मुश्किल काम है, तो 4 सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर लिए। एक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक जो एसोसिएट कर रहा है आपके डेवलपमेंट परव्यू ऑफ फाइनेंशियल सेगमेंट से, और एक जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के साथ है। इनको आप सीपीएसई के डोमेन में रखेंगे, स्ट्रैटेजिक, और उसके अलावा जितने सीपीएसईज हैं नॉन स्ट्रैटेजिक, या तो उनको डाइल्यूट कर दोगे विद द प्राइवेट हैंड, या आप उनको शट डाउन कर दोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। So central public sector enterprises are slowly, steadily, surely going to die out. जब आप स्टील करते हो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब आप कोल पढ़ते हो तो कोल इंडिया, जब आप फर्टिलाइजर पढ़ते हो तो लिस्ट है, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय न्यू कमीशन है, न्यू कमीशन नाम है, प्लांट्स पुराने ही हैं, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन, रामागुंडम, दे आर रीनेम्ड, रिवैम्प्ड। वैसे ही है बीबीएफसीएल, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सब पब्लिक सेक्टर प्लेयर। एंड व्हेन आई टेक अप एल्यूमिनियम, आपको बता ही दिया, नैल्को, इंडाल्को, यू हैव गॉट पब्लिक प्लेयर्स। अभी आप इंडियन रेलवेज की बात करोगे, एनएचएआई की बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट द मोबिलाइजेशन दैट इज बीन कोरिलेटेड विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एंड वी आर हैविंग ऑल सेट फॉर बीएसएनएल टू बी डाइल्यूटेड। एमटीएनएल को तो आपने ऑलरेडी सब्ज्यूम कर दिया, बट टीसीआईएल को आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। टेली कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड। सो वी डू हैव सम कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनको हमने अपने रेडार पर रखना है। सो पिलर्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के बीच में डिफरेंस समझा दिया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के 5 पॉइंटर्स को एनलार्ज करेंगे, जो हमें एमएसएमईज और स्फूर्ति का बल्क जज करने में मदद कर देगा, मेक इन इंडिया पॉलिसी को अप्लाई करने में मदद कर देगा, और एनआईएमजीज और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेकर हम स्विंग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग से फैसिलिटेटिव सेक्टर पर, क्योंकि एनआईएमजीज को आप नॉर्मली मिस इंटरप्रेट करते हो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवे से, दोनों थोड़े से अलग है। I hope it was an enriching session. We'll meet continuing on tomorrow, same time. Bye-bye.